ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਤੇ ਚੌਥੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਨਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਲੇ ਤਨਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ਤਰ ਪਸ਼ੂ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਨਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਨਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਬਾਪ, ਪਤਨੀ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ, ਮਿੱਤਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਤੋਂ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਾਨੇਹਾਲ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ, ਨਾਨਕੇ, ਸਹੁਰੇ। ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਸਹੁਰੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਦਕੇ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਨੋਵੇਗ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਭਾਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਦਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ, ਸਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਤ ਬਾਂਧਵ ਨਾ ਭਰਾਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਦਾਦਾ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਨਖੜ ਦਾਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਦਕੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਦਕਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਦਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ, ਸਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਤ ਬਾਂਧਵ ਨਾ ਭਰਾਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਰ ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਿਧ ਮਾਤਾ, ਮਾਮੀ ਮਾਮੂ ਮਾਸੀ ਮੌਸਾ ਬਿਵਦ ਵਿਖਿਆਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਨੀ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਣਾਨੀ, ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਮਾਸੀ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਮਾਸੜ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਰ ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਿਧ ਮਾਤਾ, ਮਾਮੀ ਮਾਮੂ ਮਾਸੀ ਮੌਸਾ ਬਿਵਦ ਵਿਖਿਆਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਸੁਰਾਰ ਸਾਸ ਸਸੁਰ, ਸਾਰੋ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਤੀਸਰ ਜਾਚਕ ਉਹ ਨਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ,
साला है, साली है, सस है, सौरा है, ये सारे पत्नी तो चलते ने। मैं फिर अर्ज करा, पिता नूं एक पासे करिए, दादकियां दी प्रणाली खत्म। मां नहीं तो नानकियां दा पसारा खत्म। पत्नी एक पासे तो कौन साला कौन साली, कौन सस ते कौन सौरा। ये रिश्तियां दी प्रणाली टुट जाती है। खड़ी है सौरियां दी प्रणाली पत्नी ते, खड़िया है दादकियां दा संसार पिता ते, नानकियां दी दुनिया मां ते। भाई साहब भाई गुरदास जी चौथी पंक्ति दे अपना मनोभाव इंज प्रदर्शित करते ने, नहीं ससुरार सास सुसर, सारो ओ सारी नहीं ब्रितीसर, जाचक ओ न दाता है, असन बसन धन धाम काहू में न देखियो, जैसे गुरसिख साध संगत को नाता है। गुरु दी संगत विच बैठ के सुरत नूं जिहड़ा प्रभु नाल जोड़ लेना है, ये जो रिश्ता है, ये जो नाता है, भाई साहब कहते हैं दुनिया च कोई ऐसा नाता नहीं। पर इसकी तह विच थोड़ा तो जो है जाना पेगा। आखिर ये संबंध परिपूर्ण परमात्मा दे बनाए हुए ने। तियां पूत सब हर के किए, सबना को संबंध कर दिए, फिर मात पिता सुत बंधप भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। यतीम कह देने असी उसनों जिसने मां नहीं, जिसदी पिता नहीं, यतीम है, यतीम है। पति नहीं तो उस पत्नी नूं बेवा कह दिता जाता है, और पत्नी नहीं तो उसका पति होना खत्म हो जाता है, एक इंसान रह जाता है, मनुख रह जाता है। हुण ये पति नहीं है, पत्नी करके ही तो पति सी। ये रिश्ते एक खास वजूद नूं, इस खास अवस्था नूं, एक खास मनोवेग नूं जन्म देंदे ने। और बच्चा ही नहीं ते मां किथे। कदी बगौर मुताला करिए, सिर्फ बच्चे दा जन्म नहीं होया, मां दा भी जन्म होया है। सिर्फ बच्चे दा जन्म नहीं होया, प्यो दा भी जन्म होया है। कहंदे आ बच्चा पैदा होया है, बच्चा पैदा होया है, पर अधूरी गल करदे आ, नहीं कहना चाहिए मां दा जन्म होया है, मां दा जन्म होया है। अधूरी गल करदे आ, लड़का पैदा होया है, लड़का पैदा होया है, पर कह देना चाहिए पिता पैदा होया है, पिता पैदा होया है। इथे एक दूसरे दे उत्ते सारे रिश्ते खड़े ने, सारे जो है संबंध खड़े ने। आध्यात्मिक संबंधां दी खान है गुरु। गुरु नूं हटा दईए, ना कोई संत, ना कोई ऋषि, ना कोई मुनि, ना कोई जोगी, ना कोई पीर, ना ही कोई पैगंबर, ना ही कोई अवतार, ना ही कोई भगत। ये सारे रुतबे गुरु तो जन्म देने। एक पत्नी नूं हटा दईए, शाखावां सारियां ही खत्म हो जाणगियां। यही एक रिश्ता है पति पत्नी दा, जो दादके अगां चल के दादके नानके ते सौरियां नूं जन्म देंदा है। एक रिश्ता नहीं तो मनुखी वहण खत्म हो जाता है, और मनुखी वहण खत्म हो गया तो किथे दादके, किथे सौरे और किथे नानके। तो जिथे आध्यात्मिक रिश्तियां दा केंद्र गुरु है, समाजिक रिश्तियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने। इस एक रिश्ते तो तमाम समाजिक रिश्तियां दा जन्म होंदा है, खला पैदा हो जाता है उस मनुख की जिंदगी च, चाहे वो स्त्री है ते चाहे पुरुष है। अगर वो सिर्फ स्त्री रह गई है, पत्नी नहीं, बेवा हो गई है। अगर वो सिर्फ पुरुष रह गया है, पति नहीं, तो उसकी दुनिया दे उसके अनुभव दे फौरन ये गल आ जाती है, किथे दादके, किथे सौरे, किथे नानके। सब रिश्तियां दराड़ पै जाती है, और ये दराड़ा कई दफा उहदी अखां दे सामने इतनियां ही वधियां ने, ढेरी हो जांदियां ने। और उस दिन पता चलता है इत्थे एक करके ही सारियां रिश्तियां दियां दीवारां खड़ियां सन, सारे रिश्तियां दे महल खड़े सन। इत्थे एक दे टुटण नाल सारियां दराड़ां पै गईयां,
जैसे बुनियाद दे दराड़ पै जाए, बुनियाद एक पासे हो जाए तो धरातल हो जाता है महल। हू बहू पति एक पासे हो जाए, पत्नी एक पासे हो गई तो दाद के सौरे नानकियां दा महल धरातल हो जाता है, दराड़ां पै जांदियां ने, सब रिश्ते ढेर ढेरी हो जाते ने। और यही दो रिश्ते ने जिन्होंने मेरी जमीर ने कदी खून का रिश्ता नहीं मनिया। सिख ते गुरु का रिश्ता, पति ते पत्नी का रिश्ता। और धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी भी पति ते पत्नी के रिश्ते नूं खून का रिश्ता नहीं मनती। आप कहते ने धन पिर ए ना आखियन, बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कईए सोए। पति ते पत्नी उसनू कहते ने जो जोत एक हो गई है, मन एक हो गया है। भावें शरीर दो ने वो ते रहणगे, वो ते अलग रहणगे, पर जोत एक हो गई है। भावें ऊपर दो कमरे खड़े ने पर थल्ले बुनियाद एक है। भावें ना दो कमरे च अलग अलग रंग है, अलग अलग ढंग का फर्नीचर है, अलग अलग ढंग की सजावट है, पर बुनियाद एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज पति पत्नी के रिश्ते नूं खून का रिश्ता नहीं मनते। और रूह जमीन ते यही अवतारी पुरुष है जिसने बुलंद बांग कह देता ये कोई खून का रिश्ता नहीं है, ये ते एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कईए सोए। ये जोत एक है, मन एक है, विचार एक ने, सिर्फ शरीर दो ने और परिपूर्ण परमात्मा ने इस तरह के दो ही शरीर बनाए ने, पर मन एक ने। महाराज कहते ने भुल के भी उन्होंने पति पत्नी ना आखना जो सारी जिंदगी इको ही मकान दे च रहे ने, पर जोत एक नहीं हो सकी। धन पिर ए ना आखियन, महाराज कहते ने भुल के भी ना आखो ये पति है ये पत्नी है। धन पिर ए ना आखियन, बैन इकट्ठे होए, सारी जिंदगी इकट्ठे रहे, इको मकान दे च रहे, इको अस्थान दे च रहे, दुनिया दी नजरां च भी इस तरह जापे जिवें इकट्ठे रह रहे ने, खुशखरम रह रहे ने, ठीक रह रहे ने। पर साहिब कहते नहीं, धन पिर ए ना आखियन, बैन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कईए सोए। दोहां दी जोत एक हो जाए, विचारां दी इतनी गहरी सांझ हो जाए, एक पत्नी हो जाए, एक पति हो जाए, एक दूजे दी पत एक दूजे दे हथ च होवे, एक दूजे दी इज्जत एक दूजे दे हथ च होवे। और अपने हत्थां नूं इतना संभाल के रखन कि मेरे हथ दे किसी दी पत है, मेरे हथ दे किसी दी इज्जत है, मेरे हथ दे किसी दा सुकून है, मेरे हथ दे किसी दी शांति है, मेरे हथ दे किसी दी जिंदगी है। अपने हत्थां नूं पति संभाल के रखे और अपने हत्थां नूं पत्नी संभाल के रखे और इस तरह जोत एक हो जाए तो साहिब कहंदे ने ये पति पत्नी ने। और यही एक रिश्ता है जो दादकियां दे रिश्ते नूं जन्म देंदा है, नानकियां दे रिश्ते नूं जन्म देंदा है, सौहरियां दे रिश्ते नूं जन्म देंदा है। ये रिश्ता टुट गया और ये रिश्ता है नहीं तो सौहरे किथे, नानके किथे ते दादके किथे। गुरु नाल ही कोई संबंध नहीं तो ऋषि होना, संत होना, भगत होना, जोगी होना, महान त्यागी होना, बैरागी होना, ये सब कुछ किथे है? ये प्रगट ही नहीं हो सकता, ये उजागर ही नहीं हो सकता। और बाकी रिश्ते जन्म ही नहीं ले सकते जे पति ते पत्नी का रिश्ता नहीं। तो मनुख दे प्राणां दे च बड़ी प्रबल प्यास है। एक छोटा जिहा बच्चा है, चाहिदी है मां, चाहिदा है पिता, पर जैसे जैसे ये वड्डा हुंदा है और इसनूं तन्हाई अखरदी है तो चाहिदी है भैण, चाहिदा है भरा। मां बाप नाल बराबरी नहीं कर सकता सी, ऐसा भी चाहिदा है जिथे कुछ बराबरी महसूस होवे। भैण ते भरा दे च बराबरी है, भाई भाई दे च बराबरी है। और जिथे बराबरी ना होवे उत्थे उन्हां नूं दो भरा कहना बेमैनी है। जिथे बराबरी नहीं शायद वो भैण ते भरा नहीं ने। मां बाप नाल बराबरी करनी औखी सी, मां वड्डी है, प्यो प्यो है, उसदे हत्थां च पले है, वड्डा होया है।
ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੜਪਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਭੈਣ, ਚਾਹੀਦਾ ਭਰਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो कहते माण ताण ही नहीं रह जाता अगर भरा नहीं है, भैन नहीं है। नानक सास सबराई, महाराज इस्त्री दी उपमा इंज पे कर दे, नानक सास सबराई। ये भागा वाली है क्योंकि सबराई ये चंगे भरावां वाली है, ये माण ताण वाली है। ये भरा ने, एवें नहीं है, ये भरा भी ने। ये नहीं आखे ये मां बाप भी ने, नहीं, ये भरावां वाली है। उस इस्त्री दी भारती समाज दे विच आद काल तो मान प्रतिष्ठा बनी हुई है। कह दिता जांदा है ते भरावां वाली है, इहदे भरा ने। एवें नहीं, ये नहीं आख्या जांदा इहदा प्यो भी है, इहदी मां भी है, नहीं। नानक सास सबराई, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने इह ते भरावां वाली है, एवें थोड़ी है। तो भरा भैन दा मान ने, भैन भरा दा मान है, भरा भरा दी बराबरी है। एक रिश्ता भी जो है चाहिए। अगां चल के प्राणा दे च एक होर प्यास पैदा होंदी है, एक उमंग पैदा होंदी है, विपरीत दी कशिश, जिसनों धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहने ढंग नाल उजागर कीता है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ए दुनिया दे ब्रह्म ज्ञानियों, एक गल नूं समझो, एक गल नूं जानो। कोई पुरुष पूर्ण तौर ते पुरुष नहीं, उस दे अंदर अद्धी स्त्री बैठी है। कोई स्त्री पूर्ण तौर ते स्त्री नहीं, उस दे अंदर अधूरा पुरुष भी बैठा है। अगर मां बाप तो ये शरीर आया है, तो इस शरीर दे कुछ मां दी अंश है, इस शरीर दे कुछ पिता दी अंश है। कोई पुरुष हो गया तो महज इस वास्ते हो गया पिता दी अंश इस देश ज्यादा है, मां दी घट है। और कोई स्त्री हो गई है, कोई लड़की हो गई है, वो महज इस वास्ते हो गई है कि इस देश स्त्री दी अंश, मां दी अंश ज्यादा है, पिता दी घट है। लेकिन कोई ऐसा पुरुष नहीं जिस दे अंदर स्त्री नहीं, और कोई ऐसी स्त्री नहीं जिस दे अंदर पुरुष नहीं। तो इत्थों एक विचार चली कि हर पुरुष दे अंदर स्त्री अर्ध अंग दे च है, अधूरी है अंदर, और हर स्त्री दे अंदर पुरुष अर्ध अंग है, अर्धांगनी। स्त्री नूं पुरुष ने अर्धांगनी आख्या, यह गल वखरी है कि स्त्री दी दृष्टि च और स्त्री दे संसार दे च पुरुष भी अर्ध अंग है। कारण पुरुष दे अंदर, स्त्री दे अंदर भी जो पुरुष है वो अधूरा है। ये अधूरा पुरुष संपूर्ण होना चाहता है, और पुरुष दे अंदर वो जिहड़ी अधूरी स्त्री है वो संपूर्ण होना चाहती है। अंदरों इसनूं पूरा करना प्रकृति ने कोई साधन नहीं बनाया, इसनूं बाहरों पूरा करना पैंदा है। और इसे ही पूर्ण करन नूं ही विवाह ते आनंद कारज कहंदे ने, शादी कहंदे ने। अधूरी स्त्री अज संपूर्ण होने लगी है, अधूरा मनुख अज संपूर्ण होने लगा है। वो अर्ध अंग अज संपूर्ण अंग हो गई, और वो अर्ध अंग जो पुरुष सी अज संपूर्ण होया। शायद इसे वास्ते बहुत वड्डी खुशी मनाई जाती है, अधूरा संपूर्ण हो गया है, अधूरा अज पूरा होया है। दरअसल स्त्री अज संपूर्ण हुई है और पुरुष आज संपूर्ण होया, तो संपूर्णता होनी एक बहुत वड्डी खुशी है। संसार दे तल देते ये संपूर्णता है, और संपूर्णता बहुत वड्डी खुशी है। सारी दुनिया दे मनुखी जगत विच इस खुशी वर्गी होर फिर कोई खुशी नहीं है। समझ लो सारियां खुशियां इस एक खुशी दे आले दुआले परिक्रमा करदियां ने, घूमदियां ने और प्रार्थना करदियां ने। ये मूल खुशी है, ये बुनियादी खुशी है। और अक्सर ऐसा जो है देखते हैं
ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਬਾਲੀ ਇਹ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਜੋ ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो इस तरह समाजिक ये रिश्ता जो पति पत्नी का है ये एक दूजे नूं संपूर्ण करता है। अगर पत्नी ने वाकई पति नूं संपूर्ण नहीं किया तो उस पति दे अंदर जो अधूरी स्त्री सी वो संपूर्ण नहीं हुई, और उस पति दे अंदर, उस पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री बैठी है वो अंश मां दी है, अधूरी अंश उस दे अंदर मां दी है। और जो लड़की है, वो जो बच्ची है, वो जो पत्नी है, उसके अंदर अधूरी अंश पिता दी है। मां बाप तो शरीर आया है तो अंश ते मां बाप दी है। तो स्त्री दे अंदर अधूरा पुरुष जो बैठा है वो अधूरा पिता ही है, और स्त्री दे अंदर जो अधूरा पुरुष बैठा है वो पिता ही है, और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री बैठी है वो मां ही है। इंज कह लो जीवन भर पुरुष मां दी तलाश करता है, जीवन भर स्त्री पिता दी तलाश करती है, और उसनू अपने पति दे पिता दी झलक ना मिले, अपनी पत्नी दे मां दी झलक ना मिले, यकीन जानो तृप्ति नहीं आती। सारी जिंदगी अधूरापन रहेगा, खटकदा रहेगा, बोझ रहेगा। और वाकई स्त्री दे किधरे मां दी झलक मिल गई, मां दे सुभाव दी झलक, मां दी ममता दी झलक, मां दी शफकत दी झलक, मां दी हमदर्दी दी झलक, मां दे प्यार दी झलक, मां दी कुर्बानी दी झलक जे किधरे पत्नी दे चों मिल गई तो समझ लो पुरुष संपूर्ण हो गया, मुकम्मल हो गया। और इस तरह स्त्री नूं जे किधरे पति दे चों अपने पिता दे प्यार दी झलक मिल गई। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि बच्ची ये बाल कन्या पिता दी तरफ लपकती है, ये बावां पसारदी है, इसदा मान तान पिता है, ये प्रकरमा प्यो दे आले दुआले कर दी है। और प्यो दा प्यार भी अक्सर इसलिए छलकदा है, इसलिए जो है उमड़दा है। पति दे चों ये प्यार ना मिलिया, पिता दे प्यार दी झलक ना मिली, पिता दे प्यार दी शफकत ना मिली, पिता दे प्यार दा हुलारा ना मिलिया, ये स्त्री भी अतृप्त रहेगी। इस रिश्ते च उन्हें कोई सुकून नहीं मिलेगा, रूहानी सुकून नहीं मिलेगा, रूहानी तस्कीन नहीं मिलेगी। और इस तरह के रिश्ते जो इंज कह लो पति नूं पत्नी दे चों मां दी झलक नहीं मिली, और पत्नी नूं पति दे चों कोई पिता दी शफकत ते पिता दी तस्वीर सामने नहीं जो है प्रगट होई, ये रिश्तियां च अंदरूनी तौर ते दरार बनी रहती है। और कई दफा हालात ऐसे हो जाते हैं बैरूनी तौर ते भी दरार प्रगट हो जाती है, नौबत तलाक तक पहुंचती है, रिश्ते जो है टुटते हैं। वास्तविक ये रिश्ता जोत दा रिश्ता है, अंदरूनी रिश्ता है, और परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग का जो है बना रखे है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां महान रिश्तियां का जिक्र बड़े सोहने आलमाना ढंग नाल उजागर करते ने। घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार। हे परिपूर्ण परमात्मा, मेरा बड़ा सुंदर घर भी है, बड़ी सुंदर महल माड़ी भी है, और उस घर दे च उस महल माड़ियां दे अंदर मेरा बहुत सुंदर एक परिवार भी है। मैं फिर अर्ज करा, मनुख नूं सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ पीना ही नहीं, सिर्फ पहनना ही नहीं, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं,
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਕਾਹਦਾ? ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਘਰ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ, ਹੋਰ ਆਖਣ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੁਕਰਾਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ, ਹੋਰ ਆਖਣ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ। ਐ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਨੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। तो हुक्म सोई तुद भाव सी, और आखण बहुत अपार। और ते बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, पर हे परिपूर्ण परमात्मा, वास्तविक तेरी रजा दे च राजी रहना, तेरे हुक्म नू जो है चंगा समझ के ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ पूछ न करे विचार। वो परिपूर्ण परमात्मा सच्चा है, मालिक है, पातशाह है। वो किसी को पुछ पुछ के बख्शिशा नहीं देंदा, दे ही जांदा है, दे ही जांदा है। किसी खेत को बदल पुछदे नहीं, बरसीए कि ना बरसीए। किसी घर को सूरज पुछदा नहीं, रोशनी देईए कि ना देईए। किसी घर दे कोल चंद्रमा पुछदा नहीं, मैं अपनियां किरणां खिलेरा कि ना खिलेना। और किसी मनुख कोल पवन पुछदी नहीं, तेनू छुआ कि ना छुआ। महाराज कहंदे इस तरह परमात्मा पुछदा नहीं, बिना पुछिया ही सब कुछ देई जांदा है, बिना पुछिया ही सब कुछ वंडी जांदा है, बिना पुछिया ही सारियां नियामतां झोली दे जो है पाई जांदा है। आखिरी रहाओ, चौथा रहाओ। बाबा होर सौना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़ी है, मन में चले विकार। गुरबाणी ग्रामर के मुताबिक इत्थे सौण दे अर्थ ने ऐशो इशरत, परिवारिक ऐशो इशरत, परिवारिक सुख साधन, परिवार दा सारा सुख दा माहौल। बाबा होर सौना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़िए, मन में चले विकार। होर सौना, होर ऐशो इशरत, इस तो इलावा जो सतगुरुदेव जी महाराज ने सवाग दे दसी, इस तो इलावा जिहड़ी ऐशो इशरत है, महाराज कहंदे तन नूं पीड़ित कर देंदी है, मन नूं रोगी कर देंदी है। ये पावन पवित्र वाक धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ऐसा है। चार रहावां दे जिंदगी दे मूल सिद्धांत सारे दे सारे बयान कर दिते ने। और तय दिल नाल जो इन्हां नूं हिरदे दे च वसा लवे, लोक परलोक उसका सुहेला हो जाता है। तन दे तल ते अरोग रहिंदा है और मन दे तल ते आनंदित होंदा है। इस तरह उसका लोक परलोक सुहेला हो जाता है। और ये पंक्ति उस दे ते पूरी उतरदी है, ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले।